Hello, students. How are you? I hope that you all are very good at your home and you all are doing your study at the top of your heart. And I hope also that last two chapters of English literature you all have studied very well. You all have completed your questions and answers, and you all have done your entire work till chapter number 4 in English literature. So today we are going to start our chapter number 5, My Mother, by Dr. APJ Kalam. I hope that you all are well acquainted with this name, with this greatest personality, and with the name and fame. Dr. Kalam is known everywhere. And students, today I am just telling you that we will complete this chapter in 4 parts. So, today is the first part of this chapter. I hope that this chapter would be very interesting for you all. This is a poem, My Mother, by APJ Abdul Kalam. In this poem, Abdul Kalam has written all about him. Okay? And this poem, My Mother, is taken, is an extract from Kalam work द विंग्स ऑफ फायर. आगे वाले चैप्टर्स में मैं आप लोगों को सारे कलाम के वर्क्स के बारे में भी बताऊंगा. आई विल आल्सो टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटिंग टू हिज लाइफ. और ये स्टोरी इसलिए मैं सुनाऊंगा बिकॉज उन्होंने इसी स्टोरी को, अपने बचपन की स्टोरी को उन्होंने माई मदर में पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया है. और इस एक्सट्रैक्शन में जो माई मदर है वो विंग्स ऑफ फायर से निकाला गया है. एक छोटी सी जो पोएम बना करके उसको निकाला गया है, दैट इज विंग्स ऑफ फायर. एंड दिस इज अ मेजर वर्क ऑफ अब्दुल कलाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, see here APJ Abdul Kalam biography. He was born on 15th October 1931 and he was the chief scientific advisor in DRDO. DRDO means everybody will write the full name of DRDO in the comment box. And he was the president of India during 2002 to 2007 and he was the 11th president of India. And he was also awarded by the Bharat Ratna in 1997. Just note down this day. He was awarded by Bharat Ratna, which is a highest civilian award of India, and he was awarded for this famous award in 1997. Actually, this is not an award, but this is an honor for any person. And some major works by Dr. Kalam are Wings of Fire. विंग्स ऑफ फायर, जिससे ये हमारे पोएम को निकाला गया है. एक छोटी सी पोएम बना करके 16 लाइन्स की पोएम है. इंस्पायरिंग थॉट्स, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस. ओके, नेक्स्ट you can see here the picture. This is the picture of Kalam's school, and this picture is taken in 1950, and the name of his school was Skwards High School, रामनाथपुरम, जो कि रामेश्वरम में है. ठीक है. and you can see here school of Kalam in 1950. 1915 में ये जो स्कूल का कलाम का जो स्कूल है, यू कैन सी द पिक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ पिक्चर दैट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल एंड अ वेरी इंस्पायरिंग. एंड इसी से रिलेटेड इन्होंने अपने पोएम्स के बारे में भी लिखा है, माई मदर. एंड ही हैज़ आल्सो रिकॉल्ड हिज ओल्ड मेमोरीज अबाउट हिज लाइफ ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज when he used to talk with his mother. ठीक है. So before starting this chapter, before starting about Dr. Abdul Kalam, I would
टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इसी से थोड़ी बहुत जो है रिलेटेड है. Now I hope that you all are understanding this very well, and I am going to tell you this story in Hindi so that you all could listen it and well understood, well acquainted with this story. इस स्टोरी में एक्चुअली ये सारे जो भी पिक्चर्स लिए गए हैं, वाट एवर द पिक्चर्स आई हैव इंसर्टेड इन दिस वीडियो आर टेकन फ्रॉम द गूगल. ठीक है, गूगल से मैंने लिया है और इसको मैंने बनाया है वीडियो को. सो कलाम्स फर्स्ट वेज, दिस इज अ टाइटल ऑफ दिस पिक्चर. मतलब कलाम की पहली जो कमाई थी, पहला जो उन्हें भत्ता मिला था वो कैसे मिला था, अखबार बेच करके मिला था. इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है. ठीक है, एक्चुअली कलाम वॉज अ वेरी पुअर, कलाम वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली. उनके 5 भाई थे और 5 बहनें थे. टोटल 10 लोग थे उनकी फैमिली में, और मदर एंड फादर. एंड हिज फादर वॉज अ बोटमैन, अ वेरी पुअर बोटमैन. बहुत ही गरीब मछुआरे थे उनके फादर, मतलब पेशे से वो नाविक थे. और हिज फादर वॉज इलिटरेट, उनके फादर जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, और अपने नामों को वो किराए पर दिया करते थे. लेकिन घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसे जो है कम पड़ जाते थे. जब कलाम 8 वर्ष के थे तो वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और नहा करके गणित पढ़ने के लिए चले जाते थे. और वो नहा करके क्यों जाते थे रोज़ सुबह 4 बजे? क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ाते थे उनका ये बेट था, उनकी ये शर्त थी कि मैं 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, वो भी सुबह 4 बजे पढ़ाऊँगा, और उन्हीं 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा जो नहा धो करके आएंगे. तो ये नहा करके रोज़ सुबह 4 बजे पहुँच जाते थे पढ़ने के लिए मैथ्स, और फिर मैथ्स पढ़ करके फिर आते थे, और मैथ्स की ट्यूशन पढ़ करके जब 4 बजे से आते थे तो वो सुबह तुरंत चले जाते थे अखबार बेचने के लिए रामेश्वरम स्टेशन पर और बस स्टैंड पर, और वहाँ पर जा कर के न्यूज़पेपर वो बांटा करते थे, और फिर वहाँ से न्यूज़पेपर बांटते थे. तो इनसे रिलेटेड एक स्टोरी मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को. आई एम जस्ट टेलिंग यूर स्टोरी रिलेटिंग टू डॉक्टर अब्दुल कलाम. आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, उनके चाइल्डहुड के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने स्पेशली इस पोएम में लिखा है, माई मदर के बारे में. फिर पोएम भी बड़ी ही अच्छे से आएगी. एक्चुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब भी स्कूल जाया करते थे तो रोज़ उनका स्कूल जो था 9 बजे, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं. एक्चुअली ये पूरा एकदम कितनी सच्चाई है, आई डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट अबाउट इट, लेकिन ऐसा लोग कहते थे कि डॉक्टर कलाम जो है रोज़ स्कूल जाते थे सुबह, और रोज़ उनको कम से कम आधे घंटे लेट हो जाता था, रोज़ आधे घंटे लेट हो जाता था, और रोज़ उनको डंडे पड़ते थे. उनके टीचर उनको रोज़ पीटते थे और रोज़ पूछते थे कलाम से कि आप आज लेट क्यों आए हो, वाई डिड यू कम लेट टुडे. लेकिन कलाम कभी उनके बातों का, उनके क्वेश्चंस का, अपने टीचर्स के क्वेश्चंस का आंसर कभी नहीं देते थे कि मैं लेट क्यों हुआ. कभी नहीं बताते थे कि मैं क्यों लेट हुआ, रोज़ मार खाते थे. एक दिन तो टीचर ने उनको इतना पीट दिया कि एकदम से उनको दर्द होने लगा, वो रोने भी लगे. हालांकि रोज़ पिटाई होती थी, लेकिन कलाम कभी बताते नहीं थे कि उनको लेट क्यों हुआ. एक दिन ऐसा हुआ कि वो टीचर स्कूल नहीं गया. उस दिन वो टीचर स्कूल नहीं गया, और उस दिन वो देर तक 9 बजे तक जो उसकी स्कूल टाइमिंग हुआ करती थी उस टीचर की, वो जॉगिंग करते हुए, दौड़ते हुए जा रहा था, और जॉगिंग करते हुए जा रहा था. और उधर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है अपना न्यूज़पेपर, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, न्यूज़पेपर ले कर के आ रहे थे बांटने के लिए. और अनफॉर्चुनेटली उस दिन जब उस टीचर ने देखा कि कलाम जो है वो बच्चा स्कूल के टाइमिंग पर भी न्यूज़पेपर जो है बांट रहा है घर घर जा कर के, तो उन्होंने देखा, और वो टीचर तुरंत ही समझ गया कि ये स्टूडेंट्स रोज़ लेट क्यों होता है. मतलब जो आदमी रोज़ लेट जाएगा, मतलब न्यूज़पेपर रोज़ बांटेगा तो लेट होगा ही होगा, ऑब्वियसली वो लेट होगा. नेक्स्ट डे कलाम रीच्ड हिज स्कूल वंस अगेन बीइंग लेट, मतलब फिर से वो लेट होकर के पहुँचे. टीचर वॉज जस्ट टीचिंग इन द क्लास.
जब वो क्लास के अंदर आए तुरंत टीचर समझ चुका था कि ये लड़का इतना लेट क्यों आ रहा है. सो दैट वाज द पॉवर्टी ऑफ दैट डे. और उस पॉवर्टी में भी कलाम पढ़ करके एक बहुत बड़े आदमी बने, देश के राष्ट्रपति भी बने, साइंटिस्ट भी बने. सो ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ वर्क्स. तो ये कहानी है उनसे रिलेटेड, और इसी कहानी से रिलेटेड उन्होंने थोड़ी सी इस कहानी से, थोड़े से अपने मदर्स की कहानी से, थोड़े से अपने जो जीवन में थोड़े थोड़े इंस्पायर होते थे उससे रिलेटेड उन्होंने अपने पोएम्स में यहाँ पर लिखा है. ठीक है. ही हैज़ कंपोज दिस पोएम माई मदर रिलेटिंग टू ऑल अबाउट हिज चाइल्डहुड स्टोरी. नाउ स्टूडेंट्स, अबाउट द पोएम, everybody will note down in starting of this chapter about the poet. okay, his name. आप लोग जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लिखो. यू कैन आल्सो राइट दैट डॉक्टर अब्दुल कलाम्स फुल नेम वॉज अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन. अब्दुल जो लास्ट में एल है वो थोड़ा सा कट हो गया है, अब्दुल कलाम. एंड हिज ऑक्यूपेशन वॉज वर्ल्ड लीडर, मतलब वो एक तरह से वर्ल्ड लीडर थे, इंजीनियर भी थे, and he was also a scientist. He was born on 15th October 1931. 15th October, on which day his birthday? His birthday is on 15th October 1931. और उनका जो एजुकेशन हुआ था वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हुआ था. एंड द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, तमिलनाडु में एक, तमिलनाडु का जो कैपिटल है चेन्नई, पहले वो मद्रास के नाम से जाना जाता था, नाउ इट इज़ नोन एज चेन्नई. और चेन्नई में ही एक प्लेस था रामेश्वरम, आप सब ने सुना होगा रामेश्वरम. और रामेश्वरम में एक छोटा सा गांव था, रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है धनुषकोडी. और ये पूरी तरह से समुद्र के किनारे पर बसा हुआ गांव है धनुषकोडी. एंड after being the scientist he is widely and popularly known as the missile man. उनको मुख्य रूप से और ये मिसाइल मैन के नाम से जाना गया. ठीक है. नाउ हिज लाइफ हिस्ट्री. he started his career as a scientist in DRDO. once again I am asking you that what is the full and complete name of DRDO. in starting I have asked you all, please राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स द फुल नेम ऑफ द DRDO. ठीक है. DRDO का फुल नाम आपको लिखना है. एंड ही वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ इंडियाज फर्स्ट SLB टू डिप्लॉय रोहिणी सैटेलाइट. मतलब कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में उन्होंने काम किया था जो भारत ने अपना पहला SLB मतलब सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, पर उन्होंने पहला जो रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था उसके वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड प्रोग्राम. और मिसाइल डेवलप प्रोग्राम का जो भी मिसाइल विकसित परीक्षण का या कार्यक्रम का जो भी वो था उसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे. एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट. और जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण सेकेंड इन 1998, ठीक है, शायद उस समय हुआ था. एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज डॉक्टर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वहाँ पर उन्होंने चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया जब पोखरण 2 का जो परीक्षण हुआ था पोखरण में. एंड he was the 11th president of India. I have already told you that he was the 11th president of India during 2002 to 2007. So this was a very sad thing about the Dr. Kalam, and he also awarded by the many honors for his works. What are those honors? Now see here, Dr. Kalam is one of the most distinguished scientists of India with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. मतलब वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय
और बहुत ही ज़्यादा ऑनर पाने वाले प्रेसिडेंट थे, और कम से कम एटलीस्ट 30 यूनिवर्सिटीज़ में उनको डॉक्टरेट की उपाधि ऑनर दिया गया था। डॉक्टरेट मतलब ऑनरेरी उपाधि दिया गया था। सपोज दैट अगर हम लोग कहीं पे पीएचडी करते हैं, कहीं पर हम लोग रिसर्च करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पीजी करने के बाद, देन वी आर गिवन अ डिग्री दैट इज डॉक्टरेट। लेकिन उनको ऑनरेरी डिग्री जब दी जाती है, किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी पॉपुलर या फेमस मैन को दे सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी डॉक्टरेट्स डिग्री। तो उनको 30 यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट्स डिग्री भी मिली थी, एंड ही हैज़ बीन अवार्डेड द कोवेटेड सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण। पद्म भूषण से 1981 में उनको पद्म भूषण दिया गया था। पद्म विभूषण 1990 में 1990 में उनको पद्म विभूषण, और 1981 में पद्म भूषण। एंड फाइनली ही वॉज awarded or honored by the highest civilian award भारत रत्ना in 1997। मतलब हमारे देश का जो सबसे उच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उससे उनको 1997 में उनको दिया गया था। He is a recipient of several other rewards and fellow of many professional institutions. In his literary pursuit, 4 of Dr. Abdul Kalam books, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। मतलब ये जो इंडिया 2020 है, उसमें उन्होंने एक नया विजन दिखाया है कि इंडिया 2020 में क्या होगा। एंड माई जर्नी एंड इग्नाइटेड माइंड्स, दीज 4 वर्क्स मीन्स विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स आर अ वेरी फेमस वर्क्स बाय डॉक्टर कलाम। Unleashing the power within India have become household names in India and among the Indian nationals abroad. These books have been translated in many Indian language। मीन्स ये सारे जो उनके वर्क्स हैं, इंडिया में जो भी डिफरेंट काइंड्स के 22 लैंग्वेजेस हैं, उन सबको जो है, उन सभी में तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। सो दिस वाज अबाउट द पोएट, जो माय मदर के पोएट हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इट वाज ऑल अबाउट द डॉक्टर कलाम। सो स्टूडेंट्स, आई एम wishing you all thank you for watching this video about the poet Dr. APJ Abdul Kalam, and I hope that everybody will subscribe and will also comment the questions whatever I have asked during this video, and I will answer of your questions. I will also like your comments, so please you also subscribe this channel, and in the next video I will explain the poem. So I think that everybody are ready for the explanation.